Hello everyone. Our today's topic is nucleophilic substitution reaction energy. So first of all we have to recall what is a nucleophile. Nucleophile beta ji, it is a nucleus loving species. It is a nucleus loving species, or you can say it is an electron rich species which can be negative or neutral with a lone pair of electrons. Okay beta ji. So what is nucleophile? Nucleophile is a nucleus loving species, or you can say electron rich species which can be either negatively charged or neutral with lone pair of electrons. ठीक है बेटा जी. तो न्यूक्लियोफाइल हमने 11th क्लास में किया था. क्या होता है न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है. अब कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, whenever a stronger nucleophile comes and substitute a weaker nucleophile, then the reaction is called nucleophilic substitution reaction. जब भी कोई एक stronger nucleophile आता है और weak nucleophile को substitute कर देता है, इस टाइप की reactions को कहते हैं बेटा जी nucleophilic substitution reaction. देखिए किस तरीके से, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर एल्काइल हेलाइड. ठीक है, एल्काइल हेलाइड और हेलोएल्केन्स यू कैन से इन IUPAC. Haloalkanes or alkyl halides. As you know, this halogen atom is more electronegative than the carbon atom. So it will, due to its electronegativity, it will attract its shear pair of electron towards itself. So it will acquire partial negative charge and the carbon atom will get partial positive charge due to the difference in electronegativity. Okay. Because halogen atom is more electronegative than the carbon atom. Now what happens when a nucleophile comes? A nucleophile which is a negatively charged, having a lone pair of electron, when it comes, it approaches carbon atom. Why? Because it is an electron rich species and carbon atom here in alkyl halide is an electron deficient species. So when it will attack this alkyl halide through carbon atom. Why? Because carbon atom is electron deficient species and this is electron rich. तो ये carbon atom पर अटैक करेगा. तो जैसे ही ये carbon atom पर अटैक करेगा, this halogen atom as halide ion will depart from it. ये halide ion जो है बेटा जी इस alkyl halide में से अलग हो जाएगा with bonding pair of electrons. हेलोजन एटम अपने बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अलग हो जाता है, डिपार्ट हो जाता है. किस तरीके से? देखिए यहाँ पर R आ गया न्यूक्लियोफाइल के साथ, ये R है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, इसके साथ बॉन्डिंग की, और ये जो हेलोजन एटम है ये अपने बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेकर अलग हो जाता है एंड बिकम्स हैलाइड आयन. सो बेटा जी दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. वंस अगेन दिस हेलोजन आटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन आटम. ठीक है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया पार्शियल, इस पर पॉजिटिव चार्ज. तो न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन रिच थी वो कार्बन के थ्रू अटैक करेगा. ठीक है, जैसे ही अटैक करेगा ये हेलोजन आटम विल टेक इट्स बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिपार्ट्स फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड. निकल जाएगा यहाँ से, क्या बन जाएगा? हैलाइड आयन, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा. ठीक है बेटा जी. सो व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? Whenever a stronger nucleophile attacks or departs weaker nucleophile from a compound, then the reaction becomes nucleophilic substitution reaction. And the halide ion or the ion which departs from the reaction, it is called the leaving group. So now we will take some of the examples of the nucleophilic substitution reaction. Okay. Now here are few examples of nucleophilic substitution reaction. First example is when alkyl halide is attacked by reagent aqueous NaOH, aqueous sodium hydroxide और aqueous potassium hydroxide. ठीक है, ये हमारा reagent है. इसमें जो हमारा nucleophile है that is OH negative. हमारा जो nucleophile क्या है बच्चे? वो है OH negative. तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, दिस विल अटैक द कार्बन and becomes, and the product becomes ROH.
H, ठीक है, ये जाएगा यहाँ पर जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा कार्बन पर, ठीक है, बन जाएगा ROH, और जो X नेगेटिव है बेटा जी वो Na के साथ कंपाउंड बनाएगा NaX, ठीक है बेटा जी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं लर्न, इस तरीके से आप निकाल देंगे इसको, ठीक है, तो R के साथ OH आ जाएगा और Na के साथ X आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। सेकेंड एग्जाम्पल, एल्काइल हैलाइड की आप रिएक्शन करवा रहे हैं RONA, क्या बोलते हैं RONA को बेटा जी? RONA को सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो इस रिएक्शन को अगर मैं इस कंपाउंड को थोड़ा इस तरीके से लिख दूं NaOR, क्यों लिखा है मैंने इस तरीके से? यहां से X और Na निकल जाएगा बेटा जी, क्योंकि यहाँ पर Na जो है वो पॉजिटिव है और OR क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो है बेटा जी OR नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा? OR नेगेटिव। ये OR नेगेटिव कार्बन एटम पर अटैक करेगा, ठीक है, तो बन जाएगा ROR, ठीक है, और हमारा जो Na है वो X के साथ चला जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, RONA लिया हुआ है, RONA को इन्वर्ट करके लिख दिया है NaOR, जिसे कि NaX के साथ में जाता हुआ दिखा सकती हूँ, और OR नेगेटिव यहाँ पर क्या है बेटा जी? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो हमारा साइड प्रोडक्ट बन जाता है NaX, ठीक है बेटा जी। ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है बेटा जी। थर्ड जो है हमारा दैट इज RX को आप अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं, RX प्लस अमोनिया, ठीक है, अमोनिया को थोड़ा सा इस तरीके से खोल देंगे H और NH2, ठीक है बेटा जी। यहाँ से X के साथ Na चला जाएगा और NH2 बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा R पर और आपको देगा RNH2 प्राइमरी अमाइन, ठीक है, और यहाँ पर HX, साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? HX, ठीक है बेटा जी। अमोनिया को हमने ओपन कर दिया है HNH2 में, यहाँ पर H पॉजिटिव पार्ट है जो कि X के साथ HX दे देगा, NH2 एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि अटैक करके RNH2 यानी प्राइमरी अमाइन देगा, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन जो है बेटा जी, फोर्थ एग्जाम्पल, RX प्लस NaI एसिटो, ठीक है, ये आप हीट कर देना, ये हीट के फॉर्म में होंगे, ये इथेनॉल के प्रेजेंस में होगा, ठीक है, ये एसीटोन के प्रेजेंस में होगा। हाँ बेटा जी, यहाँ पर RX NaI, यहाँ पर Na जो है पॉजिटिव है और I नेगेटिव है, I नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल, सो ये अटैक करेगा R पर, आपको देगा RI प्लस Na जाएगा X के साथ, देगा NaX, ठीक है, इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं हम इसको। यहाँ से निकल गया NaX, NaCl, NaBr कुछ भी है और R के साथ I। इस रिएक्शन को आप पहचानते होंगे, दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है बेटा जी। इसके बाद दो एग्जाम्पल अभी और आपको बताती हूँ। फिफ्थ रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम एल्काइनाइड्स। फिफ्थ रिएक्शन है बेटा जी, एल्काइल हैलाइड लिया आपने, सोडियम एल्काइनाइड NaC ट्रिपल बॉन्ड Cr', दिस इज कॉल्ड सोडियम एल्काइनाइड्स, ठीक है, सोडियम एल्काइनाइड्स बेटा जी। सोडियम एल्काइनाइड्स के साथ रिएक्ट करेगा हमारा एल्काइल हैलाइड, तो क्या रिएक्शन देगा बेटा जी? बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से हमने NaX निकाल दिया है, ठीक है, और NaX निकालने के बाद NaX इज द साइड प्रोडक्ट, NaX is the side product and the product form is higher alkyne, ठीक है बेटा जी। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने एल्काइल हैलाइड के साथ जब सोडियम एल्काइनाइड्स की रिएक्शन करवाई है तो मुझे यहाँ पर एल्काइन मिला है, हायर एल्काइन, ठीक है, विद NaX, ठीक है बेटा जी। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको NCERT क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है,
क्योंकि वहां पर आपको जब भी एल्काइल हैलाइड से हाइयर एल्काइंस बनाना होगा तो यू विल हैव टू यूज सोडियम एल्कानाइड्स। अब सोडियम एल्कानाइड्स आप कैसे बनाएंगे वो आप यहाँ से बना सकते हैं कि आपने जितने कार्बन बढ़ाने हैं, सपोज यहाँ पर 1 कार्बन था, वहां पर 1 के अलावा जितने कार्बन बढ़ाने हैं उस कार्बन का आप ले लेंगे पहले एल्काइन। यहाँ पर ले लिया मैंने एल्काइन R' C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है बेटा जी, जितने कार्बन बढ़ाने, कितने बढ़ाने हैं, ये वाले कार्बन बढ़ाने हैं मुझे। ठीक है, R तो था ही मेरा और मुझे इतने कार्बन और बढ़ाने हैं, तो जितने कार्बन बढ़ाने हैं उतने कार्बन का मैंने यहाँ पर ले लिया बेटा जी एल्काइन। ठीक है, तो एल्काइन में मैं रिएक्शन करवा दूं या दो NaNH2 की, ठीक है, सोडामाइड, ठीक है, सोडामाइड की रिएक्शन करवा दूं या लिक्विड सोडियम विद लिक्विड अमोनिया, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दूं। यानी एल्काइंस की रिएक्शन या तो मैं सोडामाइड के साथ करा दूं या एल्काइन की रिएक्शन सोडियम विद लिक्विड अमोनिया के साथ करा दूं, तो बेटा जी मुझे मिल जाता है सोडियम एल्काइनाइड्स। ठीक है, विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर हाई एल्कीन्स। ठीक है बेटा जी, नाउ द सिक्स्थ रिएक्शन, सिक्स्थ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। क्या बोलते हैं इसको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। ठीक है, विच इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें से जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये होता है बेटा जी H नेगेटिव हाइड्राइड आयन। ठीक है, हाइड्राइड आयन न्यूक्लियोफाइल इसमें से निकल कर आता है जो कि इस पर अटैक करता है और हमको क्या देता है RH। ठीक है, H नेगेटिव आया, उसने R पर अटैक किया, दिया हमें RH। RH क्या होता है, सिंपली एल्केन। ठीक है, साइड प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे बेटा जी इसके, AlX3 विद LiX, AlX3 विद LiX। ठीक है बेटा जी, अब तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शन है बेटा जी, इसको रब करने के बाद मैं आपको बताती हूँ वो रिएक्शंस क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा जी। अब ये 4 रिएक्शंस हैं। सबसे पहले RH की रिएक्शन हम करा रहे हैं एल्कोहलिक KCN, एल्कोहलिक KCN। ठीक है बेटा जी, एल्कोहलिक KCN के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा बेटा जी RCN, क्योंकि यहाँ पर जो साइनाइड आयन है दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये कार्बन के थ्रू अटैक करेगा, हमें देगा RCN प्लस KX। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक खास बात क्या है बेटा जी, जब ये एक रिएक्शन बना देते हैं हम उसको RH, जब एल्कोहलिक AgCN के साथ रिएक्ट कराएगा, इसको भी मैं ओपन करके लिख देती हूँ किस तरीके से, KCN। ठीक है, अगर ये रिएक्ट कराता है तो बन जाता है RCN। AgCN सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट कराएगा तो बेटा जी यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बने मिलेगा RNC विद AgX। ठीक है, देखो यहाँ पर एल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्ट करवाया है तो आपको KX मिला है यहाँ पे साइड प्रोडक्ट, और आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो है आपका एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड इज अ कॉमन नेम। ठीक है, वैसे इसको क्या बोलते हैं बेटा जी, एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल्स। ठीक है, तो RCN मिलता है। लेकिन जब मैं यहाँ पर रिएजेंट लेती हूँ सिल्वर साइनाइड तो मुझे आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, क्यों मिलता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट रिएक्शन है RH विद एल्कोहलिक KONO। क्या बोलते हैं बेटा जिसको, पोटेशियम नाइट्राइड। पोटेशियम नाइट्राइड के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलता है बेटा जी RON डबल बॉन्ड O विद KX, यानी एल्काइल नाइट्राइड। ठीक है, और 10th रिएक्शन देखिए, जब हम एल्काइल हैलाइड को
एल्कोहलिक AgONO के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन देखो कुछ और ही होती है। अब यहाँ पर इस तरीके से अल्काइल नाइट्राइड ना मिलकर आपको मिलेगा नाइट्रो एल्केन। क्या बोलेंगे बेटा जी इसको? नाइट्रो एल्केन्स विद AgX। ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 रिएक्शन बेटा जी हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइनाइड आयन ही है, ये साइनाइड आयन है न्यूक्लियोफाइल, लेकिन यहाँ पर जब रिएजेंट है पोटेशियम साइनाइड तो आपको अल्काइल साइनाइड दे रहा है यहाँ पर प्रोडक्ट, लेकिन जब सिल्वर साइनाइड है तो आइसोसाइनाइड मिल रहा है मेन प्रोडक्ट। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा जी कि अगर हम पोटेशियम नाइट्राइड लेते हैं तो नाइट्राइड हमको मिलता है अल्काइल नाइट्राइड, लेकिन सिल्वर नाइट्राइड लेते हैं तो नाइट्रो एल्केन मिलता है। ऐसा क्यों बेटा जी? क्योंकि ये जो साइनाइड है और नाइट्राइड है ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। अब ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बेटा जी, ये मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू क्लास।